Yes. Now, all of you, lesson 3, our today chapter division, lesson 3. चलिए. Now, Soumya Singh, आप बताइए, how are the metamorphic rock formed? याद है ये क्वेश्चन? बोलिए. But I am not getting your voice, Soumya. How are the now Udit Raj, बोलिए, how are the metamorphic rock formed? बोलिए. उदित राज. Yes, ma'am. The rocks which are originally the igneous or sedimentary in nature get changed in character and appearance due to the heat and pressure are called metamorphic rocks. सौम्या, एक बार आप फिर से बोलेंगे, हाउ आर द मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म? बोलिए. आपकी आवाज नहीं आ रही. नेक्स्ट टाइम. ठीक है, ओके, साइलेंट. छवि रानी. छवि रानी. Yes, ma'am. हाउ आर द मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म? बोलिए. When the sedimentary and igneous rocks change its color and appearance due to heat and pressure, and then converted into metamorphic rocks. Yes, good. Now, next is Rishika Raj. What is lava? बोलिए. Rishika Raj, what is lava? When the hot बोलिए. material inside earth comes out through cracks and joint is called lava. Is called lava. Harshit Mishra, what is lava? Harshit Mishra. Yes, ma'am. What is lava? Yes, ma'am. बोलिए, what is lava? The temperature in earth converts the solid rock into molten slate. Sometimes the hot material called the lava. आपका आंसर राइट नहीं. आपका आंसर राइट नहीं है. आप इसको सुन लीजिए. When the hot materials inside the earth comes out through cracks or joints, it is called lava. Good morning, Devpriya, ma'am. what is lava? Devpriya, what is lava? Good morning, ma'am. हाँ, good morning. बोलिए देवप्रिया, what is lava? बोलिए देवप्रिया. मैम क्या होता है मैम? पढ़ाया जा रहा है. Anima Sharma now. Anima Sharma, what is lava? The hot material inside the earth come out through cracks and joints are known as lava. Okay. Ravi Shankar now. Why are igneous rocks called the primary rocks? Why are igneous rocks called primary rocks? बोलिए. Igneous rocks are called the primary rocks as they were formed first over the earth's surface. Okay, Vanshika. Vanshika, why are igneous rocks called the primary rocks? बोलिए. Vanshika. प्रत्युष राज, आप बोलिए. Why are igneous rocks called the primary rocks? अभी नहीं, वेट करिए. Igneous rocks are also called the primary rocks because as they were formed first over the earth's surface. Okay, now Anika Singh. Anika Singh, why are igneous rocks called the primary rocks? बोलिए. Igneous rocks are called primary rocks as they were first formed on the earth's surface. बहुत बढ़िया. इच्छित भार्गव, बोलिए. Why are igneous rocks called the primary rocks? इच्छित भार्गव. इच्छित भार्गव. Now उत्पल.
उत्पल, सुमिता शर्मा, आप बोलिए वाटर Yes. सेडिमेंट्स। हाँ, वाटर सेडिमेंट्स बोलिए। विवेक वर्मा बोलिए वाटर सेडिमेंट्स। Yes, ma'am. बोलिए वाटर सेडिमेंट्स बोलिए। Ma'am, I want to say. Ma'am. वेयर यू Yes. आर सेइंग? हाँ बोलिए। ए विवेक वर्मा जस्ट वेट, सुमिता शर्मा बोल रही, बोलिए Ma'am. सुमिता। Sediment is solid material that is moved and deposited in a new location. Sediment moves from one place to another through the process of erosion. Ma'am, हाँ बोलिए विवेक वर्मा आप बोलिए वाटर सेडिमेंट। Ma'am, कौन सा ma'am? वाटर सेडिमेंट। हाँ Yes, ma'am. Sediment is solid material that is moved and deposited in a new location. Sediment moves from one place to another through the process of erosion. so the process of erosion। Yes, ma'am. ओके उसके बाद बोलिए ये वंशिका। Yes, ma'am. वंशिका हाँ बोलिए वाटर सेडिमेंट्स। Sediments are solid material that is moved and deposited in a new location. Sediments move from one place to another through the process of erosion. ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ अब आप लोग एक काम करिए, डिफरेंशिएट बिटवीन पी वेव एंड द एस वेव। डिफरेंशिएट, युवराज कुमार बोलिए डिफरेंशिएट बिटवीन पी वेव एंड एस वेव बोलिए। युवराज कुमार 7B। अभी तो आप बोल दी छवि रानी, कितना बार बोलिएगा? Ma'am, I am not saying. ओके यू जस्ट वेट, अभी युवराज कुमार को हम देख रहे हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन द पी वेव एंड द एस वेव। युवराज कुमार आप सुन रहे हैं? मुश्किल है, बच्चे क्लास नहीं कर रहे। चिल्ड्रेन आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। चिल्ड्रेन आर नॉट अटेंडिंग। उतना ही बच्चा क्लास में रिस्पॉन्स देता है जो फर्स्ट क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देता है, वही बच्चा फिर बाद में। बाकी बच्चे उनका नाम भी हम लेते रहते हैं बट दे डू नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स। बाकी बच्चे सिर्फ आराम से बैठे रहते हैं। नहीं से करिए, बस 4 ही 5 बच्चे तो आप लोग बोलते हैं, बाकी बच्चा तो बैठा ही रहता है क्लास में। फिर से बोलिएगा ना। बाकी बच्चे तो बैठे ही रहते हैं। और इच्छित भार्गव, तुम हमेशा बीच में बोलते रहते हो, जब तुमसे तुम्हारा नाम लेते हैं तो तुम कुछ नहीं बोलते हो उस समय। मैम पता नहीं, मैम बोल रहे थे, आवाज नहीं जा रहा। हाँ तो ठीक है, अब बैठे रहो थोड़ा देर। पुरु रंजन आप बोलिए डिफरेंशिएट बिटवीन द पी वेव एंड द एस वेव बोलिए। पुरु रंजन बोलिए बस। पुरु रंजन हाँ बोलिए। विवेक वर्मा बोलिए। Yes, ma'am. One second, ma'am. Differentiate between the P wave and the S wave. The P wave or a primary wave can travel through both solid and liquid medium and in faster in speed. The S wave or secondary wave speed. The S wave or secondary wave can pass through only a solid medium, and that too at a slow speed. ओके वंशिका बोलिए डिफरेंशिएट बिटवीन पी वेव एंड एस वेव बोलिए। वंशिका Yes, ma'am. हाँ बोलिए डिफरेंशिएट बिटवीन पी वेव एंड एस वेव बोलिए। Yes, ma'am. P wave, a primary wave, can travel through the both solid and liquid medium, and it's faster in speed. The S wave and
or secondary wave can pass through only a solid medium, and that too at slower speed. प्रत्युष राज बोलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन पी वेव एंड एस वेव. प्रत्युष राज Yes, बोलिए. ma'am. The हाँ P बोलिए. wave or primary wave can travel both solid and liquid mediums in at faster speed, whereas the S wave or secondary wave can only travel from solid medium and that too at the lower speed. अनिका सिंह Slower. बोलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रत्युष. बोलिए, पी वेव एंड द एस वेव डिफाइन करिए. P wave, अनिका the सिंह. P wave हाँ or बोलिए. primary wave. Yes, ma'am. The P wave or the primary wave can travel through solid and liquid, both of them medium, and also at a faster speed. Whereas the secondary wave or the S wave can travel only through the solids, this, and also at a slower speed. अनिमा शर्मा बोलिए, Yes, व्हाट इज ma'am. लावा. व्हाट इज लावा बोलिए. अनिमा शर्मा. अनिमा शर्मा, व्हाट इज लावा बोलिए. The hot inside the surface of Earth come out through cracks and joints is called lava. ओके. नेक्स्ट बोलिए, सौम्या सिंह, डिफरेंशिएट बिटवीन द पी वेव एंड द एस वेव. बोलिए सौम्या सिंह. Can I say Akash? आपकी कोई आवाज नहीं आ रही. नाउ उदित राज बोलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन पी वेव एंड एस वेव. उदित राज. The P wave or primary wave can travel through both solid and liquid medium in a faster speed, whereas the S wave or secondary wave can pass only through the solid in a very lower speed. ऋषिका राज बोलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द पी वेव एंड द एस वेव. बोलिए. The P wave or primary wave can travel through both solid and liquid medium and in faster in speed. The S wave or secondary wave can through only a solid medium and a slower speed. नहीं बच्चा जो अपना माइक ऑन करके बैठा, बाकी कोई हाथ भी नहीं उठाता है. नाम भी लो तो बोलता नहीं है. बहुत सारे बच्चे हैं, चिन्मय सांडिल है, डेली क्लास करता है लेकिन बोलता कुछ नहीं. ज्ञान प्रकाश, मोहित रंजन, प्रज्ञा प्रद्योत, प्रणव प्रसून, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बोलना चाहिए बट दे डू नॉट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड. क्लास में अटेंड ही नहीं करते हैं क्लास को सिंसियरली. हाउ टू अटेंड द क्लासेस. नाम लेकर बोलती हूँ फिर भी वो बच्चे कुछ नहीं बोलते. नाउ रविशंकर. रविशंकर आप सुन रहे हैं? नहीं. हर्षित मिश्रा बताइए, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रस्ट. बोलिए हर्षित मिश्रा. टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रस्ट. बोलिए विवेक वर्मा. बोलिए टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रस्ट. बोलिए. Yes, ma'am. हाँ बोलिए. Yes, ma'am. Crust. A crust in the outermost layer of the planet Earth. Second, it is composed of a great variety of igneous, metamorphic, and sedimentary rocks. उत्पल बोलिए. आप बोलिए टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रस्ट. बोलिए. Two characteristics of the crust are the first layer of the earth is called crust, and second याद करिए और उसको फिर से सुनाइए हमको. छवि रानी बोलिए टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रस्ट. बोलिए. Crust, it is the outermost layer of the Earth's surface.
It consists of variety of sedimentary, igneous, and metamorphic rocks. नाउ सुमिता शर्मा, Yes, सुमिता ma'am. शर्मा, हाँ बोलिए, टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रस्ट, Crust. टू कैरेक्टरिस्टिक, हाँ Crust. A crust is the outermost layer of the planet Earth. Second, it is composed of great variety of igneous, metamorphic, and sedimentary rocks. बहुत बढ़िया। वंशिका आप बोलिए, टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल, Yes, ma'am. वंशिका बोलिए। It is हाँ, very yes, ma'am. It is very thick layer of rocks beneath the crust. The entire mantle is homogeneous. ओके। नेक्स्ट है दीपक राज, दीपक राज बोलिए, टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल, बोलिए दीपक राज, दीपक राज, दीपक राज, नो नो, प्रणव प्रसून, प्रणव प्रसून, यशस्वी राज, अनंत कुमार रॉय, चिन्मय सांडिल्य, Yes, ma'am. हाँ चिन्मय सांडिल्य बोलिए, टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रस्ट मेंटल, बोलिए। Crust. The crust is the outermost layer of the planet Earth. It composed of great variety of igneous, metallic, and sedimentary rocks. अनंत कुमार रॉय, अनंत कुमार रॉय, अनंत कुमार रॉय आप सुने हैं? अनंत कुमार रॉय, नो। प्रणव प्रसून, क्लास लगा हुआ है, सिर्फ क्लास लगा हुआ है बस। मैम मैं बोलूं? नहीं बोलिए, अभी जब बोलने के लिए बोलेंगे ना तब बोलिएगा। इच्छित है ना? यस मैम। कौन बोल रहा था? इच्छित, हाँ Yes, थोड़ा ma'am. वेट कर लीजिए। हाँ जब आपको बोलने के लिए कहते हैं इच्छित, आप नहीं बोलते हैं, अब बीच बीच में खूब बोलते हैं आप, बीच बीच में आप खूब बोलते हैं। आदित्य आनंद, आदित्य आनंद, आदित्य आनंद, आर्यन क्लास 7B, आर्यन, युवराज, युवराज कुमार, युवराज कुमार, युवराज कुमार सुन रहे हैं? नहीं, ओके आप लोग कॉपी निकालिए, अब कॉपी निकालिए सारे लोग, ऑल ऑफ यू कॉपी निकालिए। हाँ वन नेम लिखेगा, इट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस, लिखिए इट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस, नेम लिखिएगा। हम सिर्फ वन वर्ड में लिखना है हम लोग को? हाँ वन वर्ड में इसका आंसर लिखना है, इट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस, वन वर्ड में लिखिएगा। नहीं क्लास से हम बहुत दुखी हैं, इतने बच्चों का हमने नाम लिया, कोई भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं किया। 10 बच्चे जो अपना वीडियो ऑन करके बैठते हैं वही बच्चे बोलते हैं, वही बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, बाकी बच्चे जो हैं प्रणव प्रसून कोई जरूरत नहीं इस तरह से मैसेज करने का, हम आपका नाम लेते रहते हैं, आपको सुनते नहीं और आप कुछ भी नहीं बोलते हैं क्लास में। डू नॉट मैसेज नहीं, जब हम बोले तो उस समय रिस्पॉन्स करिए। बिल्कुल ही नाम ले लेते हैं जो बच्चा एक्टिवली क्लास अटेंड करता है, सौम्या सिंह 7B, उदित राज 7A, ऋषिका राज, मतलब ये लोग बच्चे डेली रिस्पॉन्स भी करते हैं। देवप्रिया, अनिमा शर्मा, प्रत्युष राज, अनिका सिंह, अपराजिता, हर्षित मिश्रा, विवेक वर्मा, छवि रानी, सुमिता शर्मा, रविशंकर, वंशिका, बस उसके बाद कोई भी बच्चा, दोनों सेक्शन मिला करके बच्चा अटेंड नहीं करता है क्लास को। एक इच्छित भार्गव बीच बीच में कुछ कुछ बोलता रहेगा, इच्छित भार्गव भी टाइम देता है क्लास में, इच्छित भार्गव, बाकी कोई भी बच्चा वो 7A का हो या 7B का हो, उसको कोई मतलब नहीं है क्लास से। बस जब मन करेगा बीच में कभी बोल देना है, या क्लास से क्या हो रहा है उसे कोई मतलब।
रिस्पॉन्स भी करने की जरूरत नहीं है। वही बच्चे, वो बच्चे हमको डेली दिखते हैं, आप लोग रिकॉर्डिंग भी देखिएगा, उतना ही बच्चा लगता है कि क्लास करता है। 10 और 12 बच्चा, उससे ज्यादा बच्चा क्लास नहीं करता है, कर ही नहीं रहा है बच्चा क्लास, ना क्लास में कोई रिस्पॉन्स देता है, कोई मतलब नहीं है बच्चे। नाउ लिखिए द मोल्टेन रॉक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। Ma'am, please repeat. The molten rock material present inside the earth. The molten rock material present inside the earth. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, rocks which are formed due to cooling and solidification of magma inside the earth. मैम क्वेश्चन रिपीट करिए ना। कर रहे हैं। rocks which are formed by cooling and solidification of magma inside the earth. Rocks which are formed due to cooling and solidification of magma inside the earth. Question number 4, shaking and trembling of the earth's surface. Shaking and trembling of the earth's surface. किसके यहाँ से कुकर की सीटी आवाज दे रही है? इच्छित भार्गव, अपने आप को म्यूट करो। Ma'am, repeat the question. Shaking and trembling Ma'am, of the repeat earth's the surface. question. Yes, I am repeating. Shaking and trembling of the earth's surface. Shaking and trembling of the earth's surface. This is the question. Shaking and trembling of the earth's surface. Question number 5. A naturally occurring solid substance made up of a mixture of minerals. A naturally occurring solid substance made up of a mixture of minerals. मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। A naturally occurring solid substance made up of a mixture of minerals. This is the question. A naturally occurring solid substance made up of a mixture of minerals. हो गया? Now, ऋषिका राज, it is the hardest substance. क्या लिखा है आपने इसमें? बताइए। Diamond. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ देवप्रिया, आपकी तो आवाज ही नहीं आती है। द मोल्टेन रॉक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, क्या लिखा आपने? अनिमा शर्मा बोलिए। द मोल्टेन रॉक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, क्या लिखा है? मैग्मा। हर्षित मिश्रा, आप बोलिए। रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ, क्या लिखा है? हर्षित मिश्रा बोलिए। हर्षित मिश्रा, लगता है कुछ लिखे ही नहीं है क्या? बोलिए। सुमिता शर्मा, सुमिता शर्मा आप बोलिए। रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ, बोलिए। सुमिता शर्मा। ओके,
बोलिए विवेक वर्मा से, हाँ बोलिए क्या लिखा आपने? विवेक वर्मा, रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ। बताइए क्या लिखा? मैम igneous rock. हाँ, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, बहुत बढ़िया। रविशंकर आप बताइए, शेकिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। बोलिए रविशंकर। मैम अर्थक्वेक। ओके, नाउ इच्छित भार्गव बोलिए, नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सबस्टेंस मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। मैम रॉक। ओके, मानसिका। नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद फिर पूछेंगे। Write the name of 2 main types of seismic waves. Write the name of 2 main types of seismic waves. Write the name of 2 main type of seismic waves. बोलिए प्रत्युष राज, क्या लिखा? क्या मैम लिखा? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी। बहुत बढ़िया। This is caused by internal movement of the earth. Question number 2 देखिए, this is caused by the internal movement of the earth. This is caused by the internal movement of the earth. मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट करिएगा ना। This is caused by the internal movement of the earth. यही क्वेश्चन है। This is caused by the internal movement of the earth. This is the question. This is caused by the internal movement of the earth. बस उतना ही बच्चा आंसर दे रहा है। आप लोग आज का रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, बाकी जो लोग अपना बैठे रहते हैं क्लास में, ना अपना वीडियो ऑन करते हैं, ना कुछ बताते हैं, बोलते हैं। जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो कुछ बताते भी नहीं, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट विजिबल और नाइदर दे आर इंटरेस्टेड टू गिव एनी आंसर। इसका मतलब है क्लास लगा करके वो बच्चे घूमते रहते हैं, दे हैव नो इंटरेस्ट एट ऑल। चिन्मय सांडिल्य अभी जब पूछे हैं तो आंसर दिया है, उसके बाद पता नहीं कहाँ है, पता ही नहीं, दिखता भी नहीं है क्लास में, यहाँ क्लास को अटेंड कर रहा है। Please repeat the question number 2. Question number, this is caused by the internal movement of the earth. This is caused by the internal movement of the earth. ज्ञान प्रकाश आप बताइए, व्हाट इसका आंसर क्या लिखा आपने? This is caused by the internal movement of the earth. ज्ञान प्रकाश आप आंसर देंगे? ज्ञान प्रकाश नो। वो थोड़ा वेट करिएगा कि नहीं करिएगा, थोड़ा हम चेक करें कि और बच्चा बैठा है कि नहीं क्लास में। बोल तो रहे हैं कि ओनली सिर्फ 8 बच्चा जवाब देता है, ओनली 8 स्टूडेंट जो हमको विजिबल भी रहते हैं। आप लोग नेम भी मैंने लिया। अब ज्ञान प्रकाश का नाम ले रही हूँ लेकिन गायब है वो बच्चा, वो कुछ नहीं बोल रहा है। क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता है। शशांक शेखर, दिस इज कॉज्ड बाय द इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। क्या लिखा शशांक शेखर? वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है, अर्थक्वेक है। देखिए पेज नंबर 17 के लाइन में देखिए, द अर्थक्वेक इज द शेकिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस caused by internal movements. मैम
पैरा फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है आंसर। पैरा फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है बताइए, पढ़ के बताइए, पेज नंबर बताइए। Ma'am, 17, the earthquake is shaking and trembling of the earth surface caused by the internal movement of the earth. वही तो दिया है, हम तो वही बात बोल रहे हैं। मैम शशांक शेखर। शशांक शेखर, ओके गुड यस मैम। गुड शशांक। नेक्स्ट हाँ नहीं अभी बताइएगा, हम पूछते हैं शशांक शेखर। आप बोलिए वाटर फॉसिल फ्यूल्स बताइए, वाटर फॉसिल फ्यूल्स बताइए। Can I answer? हु इज देयर, कौन बोल रहे हैं कि कैन आई आंसर, कौन पूछ रहे हैं बताइए। शशांक शेखर, कैन आई आंसर? हाँ बताइए शशांक शेखर, बोलिए। A natural fuel such as coal or gas formed in the geological past from the of living organisms. देखिए पेज नंबर 19 में जाइए, पेज नंबर 19 में सर्टिफाइड रॉक्स के नीचे का लाइन देखिए। समटाइम्स द रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स गेट buried and trapped under the layer and over a period of time get converted into coal, oil and natural gas. They are called fossil fuels. मिला आप लोगों को आंसर? इसी टाइप। हाँ बोलिए, और कौन बोलेंगे इस आंसर को? Can I? हाँ बोलिए। Ma'am, can I Ravishankar? I am audible. Ma'am. Can I answer Anika? Soumya? Can I Udit Raj? Ma'am, can I Ravishankar? Can I Harshit Mishra? हर्षित मिश्रा बोलिए, आप क्या बोलेंगे? आपसे तो जितना भी पूछे हैं कुछ भी जवाब नहीं। हर्षित मिश्रा। Yes, ma'am. हाँ बोलिए। वाटर फॉसिल फ्यूल्स। Sometimes the remains of animals and plants get buried and trapped under the layers and over a period of get converted into coal, oil and natural gas. That's why they are called fossil fuels. ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखिए आप। व्हाई इज द नॉलेज ऑफ हाँ व्हाई इज द नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। Why is the knowledge of Earth interior based on indirect observation? थोड़ा वेट करिएगा, थोड़ा वेट तो कर लीजिए आप। कैन आई नहीं करिए, लेट अदर्स आल्सो टू राइट देयर आंसर, टू कंप्लीट देम देयर आंसर बाय देमसेल्फ। फिर हम आपका सुन ही लेंगे। सिर्फ आप ही लोग तो आंसर देते हैं, बाकी बच्चा दे कहाँ रहा है? क्लास जो चल रहा है आप ही लोग 10-15 बच्चों की आवाज से चलता है, बाकी तो कोई बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है। वो तो हम भी देख रहे हैं बेटा। Why is the knowledge of the earth interior based on indirect observation? This is the question. Why is the knowledge of the earth interior based on indirect observation? Can I just मैम हो गया? हो गया? मैम हो गया? ओके Complete. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Ma'am, done. डन। ओके हम देखते हैं किनसे हम आंसर पूछ पाएंगे। Ma'am done. हाँ गुड। Ma'am हो गया। हम नाम लेंगे, अगर वो बच्चा सुनेगा तो आंसर देगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लेकिन कोई भी नहीं है वैसा जो हमको विजिबल ही नहीं है, कोई भी बच्चा विजिबल ही नहीं है।
देखते हैं। देवप्रिया ने चैट किया है। क्या चैट किया है देवप्रिया ने? वॉल्केनिक इरप्शन, वो तो समझ में आता है। देवप्रिया, आप चाहे जिस चीज से भी क्लास करती हूँ, आपकी आवाज नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती है मेरे को, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाती हूँ। प्रत्युष बताइए, व्हाई इज द नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन? बताइए। From the knowledge of the earth interior is based on the indirect observation because deep down the earth temperature is very high. बहुत अच्छा, बोलिए अब। ऋषिका राज बोलिए, व्हाई इज द नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन? बताइए ऋषिका राज। The knowledge of the it is based on the observation because the temperature of the is high. नाउ अब बोलिए आप। मैम मैं Ma'am, can you? Who is can I? नाउ बोलिए। सुमिता शर्मा बोलिए, व्हाई इज द नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन? सुमिता शर्मा बोलिए। The knowledge of the earth interior is based on the indirect observation because deep down the temperature of the earth is very high. टेम्परेचर इज वेरी। विवेक वर्मा बोलिए, व्हाई इज द नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन? विवेक वर्मा Yes, बोलिए। ma'am. हाँ बोलिए। Yes, ma'am. The knowledge of the earth interior is based on the indirect observation because deep down the temperature of the earth is very high. ओके, नाउ अब बोलिए। वंशिका बोलिए। हाँ बोलिए, व्हाई द नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन? बोलिए। Yes, ma'am. The knowledge of the Earth's interior based on the indirect observation because deep down the temperature of the Earth is very high. बहुत बढ़िया। अब किन्हीं का कोई और क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड? हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हाँ, और इन द बिटवीन भी पूरा प्रैक्टिस कर लिया। कल आप लोगों का टेस्ट है, अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए। ओके ओके चिल्ड्रन, ओके, हैव अ गुड डे। Have a nice Good day, ma'am.